student, welcome to my channel G Science. Today I am coming with a new video. Rules for obtaining the images formed by the concave lens. So first rule is a ray of light which is parallel to the principal axis appears to coming from the focus after refraction. This is a concave lens. Principal axis, optical center. When a ray of light which is parallel to the principal axis after refraction, it will appears to come from the focus point. This is a rule number first. Now the second rule is a ray of light which is passing through the optical center goes straight after passing through the lens. This is a concave lens, optical center, principal axis. When a ray of light passing from the optical center after refraction, it will also go straight through the optical center. This is a rule number 2. Now the third rule is a ray of light which is towards the focus of the lens becomes parallel to the principal axis after refraction. This is a concave lens, optical center, here is the focus point. So a ray of light towards the focus of the lens after refraction, it is a parallel to the principal axis. This is a rule number 3. Now the formation of images by the concave lens when the object is placed between the optical center and the infinity. This is a concave lens, optical center, principal axis. So here is the object. Firstly, the parallel radiation to the principal axis after refraction, it will move in this direction. It appears to come from the focus point, and a ray of light which is passing from the optical center goes straight from the optical center. These two radiation do not actually meet. They will meet at this point, that is between the optical center and the focus. The image size is small, it means diminished, and जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बनी है. इट मीन्स जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. एंड सेकेंड, diminished size. Number third, between optical center and focus point. So when the object is placed between the optical center and the infinity, if we place the object at that point, आपको मिनिमम 2 रेडिएशंस रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन के लिए. तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रे पैरेलल लेके गए प्रिंसिपल एक्सिस के. आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्जिंग वे में गई, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि फोकस पॉइंट से आ रही हो. और एक हम रूल नंबर 2 हमने अप्लाई किया कि अगर वो सिंपल ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी. ये दोनों रेडिएशंस एक्चुअली मीट नहीं कर रही. ये आपने इस रे को वर्चुअली पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है. तो इमेज बनी है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, डिमिनिश साइज बनी है, वर्चुअल और इरेक्ट बनी है. नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो वहां से रेडिएशंस आती हैं वो पैरेलल आती हैं एक दूसरे के. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर. तो जो रेडिएशंस आती है दैट आर पैरेलल टू ईच अदर. तो हमने 2 रेज कंसीडर कर ली. एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही चली जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन. सेकेंड रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इस डायरेक्शन में. ये दोनों रेज कहीं मीट नहीं कर रही, हमने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट करवाया तो ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द फोकस पॉइंट. सो इमेज विल फॉर्म्ड एट द फोकस पॉइंट. सेकेंडली, इट इज हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि जो रेज आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही है, और इन्फिनिटी वी डोंट नो, तो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज होगा ऑब्जेक्ट का. और जो इमेज बनी है वो क्या बनी है, हाईली डिमिनिश्ड साइज बना है, फोकस पे बनी है. और आपको पता है लेंस के केस में जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है अगर उसी साइड पे इमेज बनती है तो उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो इन बोथ द केसेस ऑफ द कंकेव लेंस जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है.
डिमिनिस्ड बनती है। और आपने सेम ऐसा कन्वेक्स मिरर में पढ़ा था कि कन्वेक्स मिरर में भी जो हमेशा इमेज बनती है वो डिमिनिस्ड बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। इसका मतलब जो कन्वेक्स लेंस है वो कनकेव मिरर की तरह काम करता है। Now the uses of convex lens. Convex lens is used to making the simple camera. Simple cameras को बनाने में convex lens का यूज किया जाता है। Convex lens is used to in spectacles to correct the defect of vision called hypermetropia. Hypermetropia एक डिफेक्ट होता है जिसको हम लॉन्ग साइटनेस भी बोलते हैं, कि जिसको दूर का साफ दिखता है, पास का साफ नहीं दिखता, तो उस पर्सन को कन्वेक्स लेंस लगता है। किसके अंदर? स्पेक्स के अंदर। ये आप पढ़ोगे इन द चैप्टर ह्यूमन आई में। इट इज यूज इन द माइक्रोस्कोप्स के अंदर, टेलीस्कोप्स के अंदर हम यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस का। और कन्वेक्स लेंस का यूज होता है फिल्म प्रोजेक्टर्स के अंदर भी यूज करते हैं। Now the uses of concave lens. Concave lens is also used in the spectacles to correct the defect of vision myopia. Myopia का मतलब होता है short sightness, कि जिस पर्सन को पास का साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता, तो उनको जो स्पेक्स लगता है उसके अंदर कौन सा लेंस यूज किया जाता है? कनकेव लेंस। ये हम ह्यूमन आई वाले चैप्टर में कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। व्हाट आर द डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब स्टडी किए जाएंगे। तो दिस इज द यूजेस ऑफ द लेंस। इट इज यूज्ड एज अ आई लेंस इन द गैलीलियन टेलीस्कोप। सो टेलीस्कोप का आपको पता है, ऐसी दूर की चीज़ों को देखने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं हम, तो उसमें दो टाइप के लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। सो आई लेंस में कौन सा लेंस लगता है? कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द कॉम्बिनेशन विद कन्वेक्स लेंस। हम इसको कन्वेक्स लेंस के साथ कंबाइन करके एक हाई क्वालिटी का हम लेंस सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इट इज यूज इन द डोर स्पाई होल्स, कि डोर्स के अंदर भी ये यूज किया जाता है किसका? कनकेव लेंस। नाउ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ कनकेव लेंस। An object is placed at a distance of 50 cm from a concave lens of focal length 20 cm. Find the nature and position of the image. सबसे पहले आपको एक बोला गया कि ये कनकेव लेंस है, जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने कनकेव लेंस से 50 सेंटीमीटर पे रखा है। आपको पता है ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, तो आपको ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा और इंसिडेंट रेडिएशन इस डायरेक्शन में। सो जो यू लोगे वो आप हमेशा क्या लेके चलोगे? नेगेटिव माइनस के 50 सेंटीमीटर। और उसने आपको बताया था कि जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव लेनी है, और कनकेव के लिए फोकल लेंथ को हमेशा क्या लेके चलना है? नेगेटिव लेके चलना है। तो आपको वी फाइंड आउट करना है, नेचर फाइंड आउट करना है, पोजिशन। बट अभी हमने पढ़ा है कनकेव लेंस के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि कनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, डिमिनिस्ड बनती है। तो हम देखते हैं क्या बनती है या नहीं। तो लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v माइनस 1/u इज माइनस 50 विच इज इक्वल टू 1/-20। So 1/v plus 1/50 is equal to minus 1/20. So 1/v is equal to minus 1/20 minus 1/50. So LCM is 100. Minus 5 minus 2 which is equal to 1/v. So 1/v is equal to minus 7/100. रेसिप्रोकल करोगे तो v is equal to आया minus 100/7. It means minus 114 point something. So v is negative. Negative means कि आप ऑप्टिकल सेंटर से रिवर्स, मतलब इस साइड पे इमेज बन रही है, तभी नेगेटिव आया v। अगर इस साइड पे इमेज बनेगी तो आपको पता है कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। ओके, एंड पोजीशन इज minus 14.3. Now the second numerical is an object is placed 50 cm from a lens which produces a virtual image at a distance of 10 cm in front of the lens. Draw the diagram and calculate the focal length and magnification. Firstly हमारे माइंड में आएगा कि हमें लेंस गिवन नहीं है, हमें लेंस का नेचर बताना है, और हमें बोला गया वर्चुअल इमेज है। तो कन्वेक्स लेंस के केस में भी एक केस ऐसा था जहाँ पे वर्चुअल इमेज थी, और कनकेव के तो दोनों केसेस में ही वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस हुई थी। तो अभी हमें कैसे पता लगेगा नेचर? जो चीज़ आपको गिवन है, कोई भी हम लेंस का यूज करें, आपको पता है कि जो यू है वो हमेशा क्या आएगा आपका? नेगेटिव माइनस के 50।
उन्होंने बोला है कि जो इमेज है वो वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल का मतलब जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बन रही है, और कितने डिस्टेंस पे बन रही है, 10 सेंटीमीटर। तो वी भी आपका क्या होगा, माइनस के 10 सेंटीमीटर होगा। आपको सबसे पहले हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। अगर फोकल लेंथ आई पॉजिटिव तो कन्वेक्स लेंस है, अगर फोकल लेंथ आई नेगेटिव इट मीन्स वो कनकेव लेंस है। सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v 1/-10 minus 1/-50 is equal to 1/f. So minus 1/10 plus 1/50 is equal to 1/f. So LCM लेंगे 50 minus 5 plus 1 is equal to 1/f minus 4/50 is equal to 1/f. So f is equal to minus 25/2 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इज नेगेटिव। नेगेटिव इट मींस फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो किस केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होते हैं, कनकेव। तो कौन सा लेंस है, ये कनकेव लेंस है। अब आप डायग्राम शो करके दिखा सकते हो, क्योंकि उन्होंने बोला ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो। फोकल लेंथ निकल आई, मैग्निफिकेशन भी आपको निकालनी है और डायग्राम बना के दिखाना है। तो फर्स्टली हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v/u, m is equal to v/u. So m is equal to v is minus 10 and u is minus 50. So 1/5. So मैग्निफिकेशन कितनी आई है, 1/5 आई है। और आपको क्या करना है, डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाना है। तो डायग्राम आप बना सकते हो। कनकेव लेंस लिया आपने ऑब्जेक्ट को रखा 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ पे रखा आपने, ठीक है। पैरेलल रेडिएशन गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस टाइप से गई, तो ये इस टाइप से आप कर सकते हो। ये फोकस पॉइंट है। एक रेडिएशन आपने ऐसे पास आउट की, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इमेज बनी। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो ये आपका क्या हो गया, डायग्राम। So student, if you like my video, so please subscribe my channel and share the videos. Thank you student.